لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود ابراہیمی پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات کی بڑائی بڑھائی عظمت بلندی شان رتبہ جاہ و جلال ہم سب کے حقیقی مالک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام ہو ہمارے رہبر ساتھی کوثر شافع محشر در یتیم آمینہ کے لال سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ قیامت کا منظر ہوگا، اللہ سارے دنیا کے لوگوں کو جمع کرے گا، بڑے بڑے حاجی آئیں گے، اللہ کسی حاجی کو یہ نہیں کہے گا کہ حج کر کے دکھاؤ، بہت بڑے سخی آئیں گے، ان کی سخاوت کے چرچے دنیا میں بڑے ہوتے ہیں، اللہ یہ نہیں کہے گا میرے سامنے تو اپنے مال کو ذرا خرچ کر کے دکھا، تہجد گزار نمازیں پڑھنے والا 5 وقت کی اس کے علاوہ نوافل ادا کرنے والا، اللہ کسی کو بلا کر یہ نہیں کہے گا کھڑا ہو اور میرے سامنے کھڑا ہو کے نفلی نماز یا فرض ادا کر کے دکھا۔ یہ محفل جو آپ کے سامنے ہو رہی ہے، یہ جو قرآن کے قاری اپنے مختلف اندازوں کے اندر آپ کو قرآن سنا رہے ہیں، قیامت کے میدان کے اندر کائنات کا رب ان کو بلا کر کہے گا اے قرآن کے حافظ، اے قرآن کے قاری، جیسے تو دنیا کے اندر اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھ کر سناتا تھا، آج اپنے رب رحمان کو یہاں بھی پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ قرآن کو اللہ قیامت کے دن بھی سنے گا۔ یہ دنیا ایک ایسی زلزل میں دھنسی ہوئی تھی، شہادت کا سما تھا، میرے نبی کی آمد سے قبل لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، لوگوں کا معاملہ ایسا تھا، لوگ اپنے بڑوں کی عزت اور احترام نہیں کرتے تھے، حلال کا پتہ نہیں تھا۔ وہ جو تقریر کائنات کے رب نے قرآن میں سکھائی ہے ان کو پتہ نہیں تھا۔ پھر ہیرا کی چوٹیوں سے کائنات کے رب نے ایسے پیغمبر کو چراغ دے کر نمودار کیا، وہ جو عزتوں کو رسوا کرتے تھے وہ بیٹیوں کے سروں پہ آنچل رکھنے لگ گئے۔ وہ لوگ جو اپنے معاشرے میں بھیڑ اور بکریوں کی طرح خواتین کو رکھتے تھے، یدنین علیہن من جلابیبہن کا پہلو پکڑ کر انہوں نے اولادوں کو عزتیں دے کر دکھا دیا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے 1400 سال کا پاسا کیا پلٹا۔ آج کے بڑے نامور، بڑے جدید لبرل قسم کے لوگ کہتے ہیں قرآن سے کیا ہوتا ہے، یہ مسجد کی صفوں سے کیا ہوتا ہے۔ آؤ تمہیں بتلاتا ہوں، یہ میری میراث ہوتی تو شاید آج تک مٹ چکی ہوتی، یہ کسی ایک کاری کی میراث ہوتی تو شاید دیواروں میں تھم چکی ہوتی۔ یہ آج گلی گلی میں اس کی صدا اس لیے ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں جاتے ہیں اور لوگوں کا رش دیکھا، کہا یہاں کیا کر رہے ہو، دوڑ کر جاؤ، مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ ہمارے ذہنوں میں بھی میراث کسے کہتے ہیں؟ روپیے کو، سونے کو، درہم دینار کو۔ قربان جاؤں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ کہنے لگے جاؤ تو صحیح، تمہیں مسجد نبوی میں میراث ملے گی۔ لوگوں کے ذہن میں مال آیا، مال غنیمت آئی، ان کو لگا کہ نبی کے بیت المال میں شاید مال بڑھ گیا ہے۔ سارے دوڑ کر مسجد نبوی کے دروازے پہ جمع ہوئے، دیکھا کوئی تقسیم نہیں ہے، کوئی مال نہیں مل رہا۔
किसी को कुछ नहीं दिया जा रहा। वापस आए, कहा या अबा हुरैरा तुम झूठ तो नहीं बोलते, नबी के हदीसों के रावी हो, नबी के कुरान के मुहद्दिस हो, क्या कहना, लेकिन झूठ तो तुम्हारा जुबान से निकलना कि मस्जिद में मिरास तकसीम हो रही है, वहां तो कोई रुपया, कोई दिरहम दिनार अशरफी नहीं मिल रही, आपने हमसे झूठ कैसे बोला। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, वो अल्लाह के बंदो, वहां कोई बैठा बच्चों को कुरान पढ़ा रहा था, कोई कुरान सिखला रहा था, कहने लगे हाँ वहां कारी तो कुरान पढ़ा रहा था, वो सुफा के कारी जिनके जिस्मों पे लिबास ऐसा था, फरमाया कि ला कुमसुन, कमीजें नहीं थी, सिर्फ तहबत बांधा हुआ था, उनके पाँव के अंदर जूते नहीं थे, कुरान पढ़ाते हुए उनकी तबीयत, उनका मिजाज कैसा है। सैयदना अबू हुरैरा कहते, ओए अल्लाह की कसम तुम अशरफियों को देखते रहे, तुम देखते रहे, कहां से तुम्हें सोना मिले, सिक्के मिले, और रब्बे काबा की कसम वो जो कारी पढ़ा रहा था मेरे मोहम्मद की मिरास वही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अल्लाह ने मिरास वही दी है। अफसोस से कहना पड़ता है, कारी अब्दुल सलाम अजीजी साहब मेरे बड़े भाई हैं, अल्लाह इनको जिंदगी दे। अल्लाह की कसम चंद दिन पहले इनसे मुलाकात हुई, रास्ते में ये बात सोचता रहा था, क्या कहना, उन्होंने अल्फाज कहे थे, कुरान के कारियों को मस्जिद तक महदूद करके उन्हें सिर्फ वाशरूमों को साफ करने के लिए भी कहा जाता है, कुरान के कारी को मस्जिद की चटाइयां साफ करने का भी कहा जाता है, उसे घरों में अपने बेटों को ट्यूशन पढ़ाने का भी कहा जाता है। वो काम तो ये था कि उसे कहा जाता आपके लिए बेहतरीन खाने हैं, बेहतरीन लिबास है, बेहतरीन कारी है, आपका फर्ज है भटकी हुई कौम को कुरान सिखाएं, गली मोहल्लों में, मदरसों में, मस्जिदों में। आप परेशान न होइएगा, माल खुद चल के आएगा, हम आपकी पुष्टपनाही करेंगे। मगर वो कहते हैं क्या करें, हमें उस्तादों की तनख्वाहें इकट्ठी करने जाना पड़ता है, बच्चों के आटे का बंदोबस्त करने जाना पड़ता है, सब्जियों के बंदोबस्त, हमें वो बिजलियों के बिलों के बंदोबस्त। अल्लाह की कसम याद रखना, जिन कौमों ने कुरान को पसे पुष्ट डाला, जिन कौमों ने कुरान से गद्दारी की है, जाओ तारीफ पढ़ के देखो, सफेद जिस्मों की मानित हकीर बनकर उभरे हैं। अल्लाह की कसम कुफार ने रोंद डाला, और जिनके सीने में कुरान था दरिया के किनारे खड़े हो गए, खालिद बिन वलीद जैसे सिपह सलार कुरान को थाम के कहते थे, अल्लाह ये तो समंदर है, पानी है, अल्लाह की कसम इससे आगे किनारा होता, तेरे पैगंबर की दावत को हम वहां भी पहुंचा के आ जाते। ये कुरान की बरकत है, याद रखे इस कुरान को हमने परवान चढ़ाना है। मैं कुछ बातें करके अपनी बात को खत्म कर देता हूँ, वक्त कम है, मेरे मुअज़्ज़ज़ कुर्राए किराम मौजूद हैं, याद रखना। हमें तो लगता है यहाँ पे कारी साहब 5 मिनट जो 10 मिनट की नमाज है बस यही कुरान है। याद रखें कुरान हशर में भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा। हम समझते हैं कब्र में शायद 3 सवाल है, कितने सवाल होंगे कब्र में? 3 सवाल होंगे, उर्फ़े आम में मशहूर है। याद रखें कब्र में 4 सवाल होंगे, कितने? 4 सवाल होंगे। किसी ने नहीं बतलाया तो और बतला रहा हूं, आपको सिखला रहा हूं। पहला सवाल सबको याद है, मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? मन नबिय्यु का, तेरा नबी कौन है? मां दीनु का, तेरा दीन क्या है? हम कहते हैं कारी साहब ये तो पढ़ा है, यही सवाल होंगे। छोड़ कुरान के कारी को, छोड़ कुरान की सफों को, छोड़ कुरान की क्लासों को, छोड़ दे इनका पल्लू। याद रख कब्र में जबान नहीं मिलेगी, तुझे बोलना भी नहीं आएगा। अल्लाह रब्बी वो कहेगा जो कुरान के कुर्रा से प्यार करता है, कुरान की सतरों से प्यार करता है। मेरा नबी अल्लाह रब्बुना, अल्लाह मेरा रब है, मुहम्मद नबीयुना, मुहम्मद हमारे नबी है। अल इस्लाम दीनी, ये सारे जवाब वो देगा। इसे फरिश्ता चौथा सवाल करेगा, वो कहेगा अच्छा ये तूने सब बातें तो कह दी, इतना तो बतला हुआ, मां युदरी का, तुझे ये खबर किसने दी? किस तुझे स्कूल में पढ़ाया गया था कि अल्लाह तेरा रब है, मोहम्मद तेरे नबी है, इस्लाम तेरा दीन है? वो क्या करेगा? वो कहेगा चाचा ने बतलाया, मैंने एमए की डिग्री ली थी, उसमें लिखा था
नहीं, वो कहेगा क़िराअतु किताब अल्लाह, मुझे अल्लाह के घर से कुरान जो किताब मिली थी उसने बतलाया था अल्लाह रब्बुना, अल्लाह मेरा रब है, मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद मेरे रसूल है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के हाँ जो दीन मेरा है वो इस्लाम है, ये कुरान ने बतलाया। ये किसने सीखना? याद रखे वो दिन दूर नहीं है, कुफार तुम्हारी सफों में आ जाएंगे, वो तुम्हारे मुआशरे में सारे हर एक्टर को जानते हैं, हर ड्रामे को जानते हैं, खुश नसीब है वो आप लोग, अल्लाह की कसम के आपको महफिल हुस्न क़िरात के लिए ये पूरा वक्त देते हैं। याद रखिए जिस दिन अल्लाह ने मुंह मोड़ा आप तलाश करते फिरोगे कि कोई आए कुरान पढ़कर दिलों को सुकून दे। हम कहाँ बेसकूनी में, 70 साल उम्र है, बाबा जी दवाइयाँ खा खा के मर रहा है, कहता है चैन नहीं आता। जवान बेटे हैं, अल्लाह की कसम 30,000 लेकर 40,000 लेकर सुकून नहीं आता। पूछ इनको कराम से 10,000 लेकर तेरी बातें सुनकर भी अगर इनके चेहरों पे नूर है तो अल्लाह की कसम ये कुरान की बरकत, ये कुरान का मुकाम है। आखिरी बात, कुरान की अजमत मेरे भाइयों याद रखना, क़यामत का दिन होगा। हमें इसकी हकीकत इसलिए नहीं पता कि हमें पता ही नहीं कि ये नाज़िल किसने की। हम तो समझते हैं रवायती है, शादी हो तो बेटियों के सर पे, निकाह हो तो कलमे सुनकर कुरान की चंद बातें फिर खत्म। कुर्रा से दिल लगा ले हशर में, अल्लाह की कसम कब्र से निकलते ही बाजू बनने वाला ये कुरान होगा, ये कुरान साथी होगा। आखिरी इसके फजीलत पे बात कर रहा हूँ मैं। आप तरीके दमिश्क और तरीके इस्लाम को पढ़ के देखें, बड़े बादशाह गुजरे हैं, हारून रशीद, मामून रशीद, ये बहुत से बड़े बड़े अपने अरब के बहुत बड़े बड़े बादशाह हैं। इन्हीं का एक भाई मामून है, उसके दरबार में महफिलें लगती हैं, और महफिल ये नहीं मौसीकी की या कंसर्ट कोई गानों का, उसके दरबार में महफिल लगती है तो इल्म की मजलिस लगती है। एक तरफ यहूदियों का स्टेज है, एक तरफ ईसाइयों का स्टेज है, एक तरफ मुसलमानों का स्टेज है। यहूदी अपने दलाइल देते हैं, ईसाई अपने दलाइल देते हैं, मुसलमान अपने दलाइल देते हैं। मामून रशीद ने देखा एक ईसाई इतनी गुफ्तगू करता है, इतना इल्म रखता है, उसके पास गया महफिल के बाद, कहने लगा तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा, जो डिमांड करेगा तुझे अदा करूंगा। मुसलमानों का वकील बन के लड़ा कर, कुरान का वकील बन के लड़ा कर, उसने कहा नहीं नहीं, अंजील का पैरोकार हूं, उसका दिफा करूंगा। चला गया। अब 1 साल के बाद मजलिस दोबारा लगती है, मुसलमानों का स्टेज सजा, ईसाइयों का सजा। वही पादरी जिसे उसने इस्लाम की दावत दी उसने कबूल नहीं की, वो आता है और आकर मुसलमानों के स्टेज पे बैठ जाता है। सारे हैरान हैं, कहने लगा आज मैं इस्लाम का दिफा करूंगा, आज मैं कुरान का दिफा करूंगा। पूछा गया तुझे तो दावत दी गई, तुझे तो पहले कहा गया, तूने कलमा नहीं पढ़ा, आज तेरा रंग कैसे बदल गया? कहता लोगों मैंने तजर्बा किया, मैंने अपनी जिंदगी में कुरान का मौजज़ा देखा, मैंने कुरान का ये पहलू देखा, मैंने अंजील के सफ़ों में तब्दीली करके उसकी आयतों को आगे पीछे करके, तौरात की आयतों को आगे पीछे करके लिखवाया और कुरान की सतरों को भी तब्दील करके, सूरतों को आगे पीछे करके मैंने कुरान को मार्केट में बेचा, तौरात को बेचा, अंजील को बेचा, सारी फरोख्त हो गई। लेकिन मैं शाम को इंतजार करता रहा, पता तो चले कौन है जो अपनी किताब से मोहब्बत करता है। कहता शाम हो गई, सूरज गरूब गया, कोई भी बंदा, कोई भी लड़का या कोई बेटा उसे पढ़ने वाला ना तौरात लेके आता है, ना अंजील लेके आता है कि मेरी किताब बदली हुई है। वो क्या करने लगा, एक छोटा सा बच्चा है, उसी कुरान को सीने से थामे हुए मेरे सामने आके कहता है कुरान वापस कर लो, मैं इस कुरान को नहीं खरीद सकता। मैंने कहा बेटा कुरान वापस क्यों करना है? कहने लगा जिस कुरान को अल्लाह ने मुझे दिया है मेरे नबी से होते हुए, सहाबा के सीनों से होते हुए, वो अलहम से
سے شروع ہوتا ہے، اس کی پہلی سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، اس کی آخری سورت کا نام سورۃ الناس ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہے، اس کے حرف یہ ہے، زبریں یہ ہے، زیریں یہ ہے، اور اس میں صورتیں بھی بدلی ہے، اس میں زبریں بھی بدلی ہے۔ یاد رکھ یہ میرا قرآن نہیں، میرے قرآن کی ترتیب نہیں۔ کہتا اللہ کی قسم میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور جن کی زبریں زیریں اتنی محفوظ ہوں ان کا دین کیسے رک سکتا ہے، ان کا اسلام کیسے جھوٹ ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیو قرآن کا مقام بڑا ہے، تنزیل من رب العالمین۔ میں آپ سے کہوں نا دروازے سے وہ شخص آ رہا ہے، آپ سب پلٹ کے دیکھیں گے پتہ نہیں کون آ رہا ہے۔ اللہ کی قسم اس قرآن کو اللہ کہتا ہے تنزیل من رب العالمین۔ لوگوں یہ کسی کی چوکٹ سے نہیں آیا، یہ کسی گویے کا قول نہیں ہے، یہ کسی گانے والے بھانڈیا میراثی کی کتاب نہیں ہے۔ تنزیل من رب العالمین یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے، اسے تھام لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں حرف آخر یہی کہوں گا، وہ مؤسس سے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ مؤسس سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔